Hello everyone, good morning. So in the last video lecture we have discussed about Cauchy integral formula. Cauchy integral formula is applicable whenever a function is analytic within a domain D except few points, except at few points. Okay, so then we apply Cauchy integral formula. Now in that continuation we will further proceed. Then we will discuss Taylor's theorem for complex variable. I remember that we have also done Taylor's theorem for complex variable. This is for Taylor's theorem for x. And then afterwards we did Taylor's theorem for several variables. Okay, and now we are going to discuss Taylor's theorem for complex variable. Now what is the theorem for complex variable? It is the statement is, if a function fz is analytic at all points inside a curve C with its center at the point A and radius capital R, then at each point Z inside C, let us suppose I draw a curve here, the center is here and the radius is R, then at each point Z inside C, C के हर पॉइंट पर C के हर पॉइंट पर ये एनालिटिक है, तो fz कैन बी एक्सप्रेस्ड एज fz इज इक्वल टू fa प्लस f डैश a z माइनस a प्लस f डबल डैश a अपॉन फैक्टोरियल टू z माइनस a होल स्क्वायर अप टू so on. Now let us understand how to expand a function fz which is tan inverse z in powers of z using Taylor's theorem. Okay, let's see. Now we have, what do we have? It is the solution. We have fz is equal to tan inverse z. Then I can write dfz upon dz because I know its differentiation exists. So this is 1 upon 1 plus z square. Okay, so what it will be now? It can be written as 1 plus z square to the power minus 1. ठीक है, अगर हम चाहें तो हम नॉर्मल तरीके से भी एक बार एफ ए निकालें, एक बार एफ डैश ए निकालें, लेकिन अगर उससे करते हैं तो कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे आ जाते हैं जो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात भी ध्यान रखनी पड़ती है कि समटाइम्स हमें क्या मिलता है, ऐसा फंक्शन मिलता है जो सर्कल के अंदर किसी यानी डोमेन के अंदर किसी एक पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होता है, तो उस केस में हमारी फिर टेलर्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है. इस वजह से हम इसको ज़्यादातर बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं. मैंने जो भी अभी कहा मैं उसे फिर से रिपीट करती हूँ. मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि जो एफ होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, या तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि हम उसका nth डेरिवेटिव नहीं निकाल पाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि वो डोमेन डी के अंदर किसी एक पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होता है. अगर ऐसा केस होता है तो टेलर्स थ्योरम लगाना बहुत मुश्किल होता है. इवन अगर किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है तो टेलर्स नहीं लगेगी, और अगर f टू दी पावर nz नहीं निकल रहा तो भी टेलर्स थ्योरम लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए हम इसे कोशिश करते हैं कि बाइनोमियल से एक्सपेंड करके लगाने की कोशिश करें. देखिए, अगर ये एनालिटिक है तो ये डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल है तो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी तो ये हो जाएगा. नाउ आई विल अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम. व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम? 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर plus up to so on. This is our binomial theorem. Now I will apply it here. Then I will get dfz upon dz is equal to 1 plus
it will become -1 z square because this is x and n is -1. x की जगह पर क्या है, z स्क्वायर है, और n की जगह पर क्या है, -1 है. तो हमें मिलेगा 1 + -1 इंटू z स्क्वायर प्लस z square plus up to so on. Now this will be 1 minus z square. This will become plus 2 by 2 is 0 to the power 4, and the next term will come minus and plus up to so on. Now this is our z. Now we will integrate it. On integrating, अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू z वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए I will get fz is equal to इंटीग्रल ऑफ 1 इज z माइनस z स्क्वायर का इंटीग्रल z क्यूब बाई 3, 4 का इंटीग्रल z टू दी पावर 4 बाई z टू दी पावर 5 बाई 5 and this is minus up to so on. ठीक है. So now I got this plus c, which is what is c? C is the integration of constants. ठीक है. Now let us say this is equation number 1 and this is equation number 2. Okay. Now we know on putting z is equal to 0, when I'll put z is equal to 0, I'll get fz is equal to 0 in this here. अगर मैं यहाँ tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है, तो fz भी 0 मिलेगा. ठीक है. Put z is equal to 0 and fz is equal to 0 in equation number 2. On putting in equation 2, when I'll put this, what I'll get f0 0 minus 0 plus 0 up to so on plus c. Then what is c? C is equal to 0. Then what is fz? Now I am putting the value of c here in this equation. So what is fz? Z minus z cube by 3 plus z to the power 5 by 5 minus up to so on, and this is our answer for the Taylor series. Okay. Now let us discuss one more question on this Taylor series. Here I have a very important question which has come many times in UPTU examination, AKTU, RGPV, any engineering college exams. This question is very frequently appearing in the question papers. So this is question is expand 1 upon z square minus 3z plus 2 in the given region. So this is expand 1 upon z square minus 3z plus 2 in the region. Now they are giving the region. Number 1 is mod z is less than 1 and number 2 is mod z is greater than 2 and number 3 is mod z is greater than 1 and less than 2. This is our question. Okay, now solution. Now this question, in this question what is fz? Fz is 1 upon z square minus 3z plus 2. So I can write this in z square minus 3z plus 2. Okay. Or if I calculate its nth derivative, that will be quite big. Okay. या हमें फॉर्मूला याद हो nth डेरिवेटिव का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से, तो हम जितने चाहें उतनी बार निकालें इसका डिफरेंशिएशन, उससे भी हम कर सकते हैं. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, हमें इसको करना है पहले इस रीजन के अंदर. इसका क्या मतलब हुआ, हम जो मैं अपनी बात क्या कहना चाहती हूँ दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगी n टाइम्स,
तो पहली बात तो इसका जो डिफरेंशिएशन होने वाला है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। बट इन केस अगर मैं इसको सॉल्व भी कर लेती हूँ, ठीक है, अगर हम इस डिफरेंशिएशन को निकाल भी लेते हैं तो हमें दिक्कत क्या होने वाली है, हमें दिक्कत होने वाली है कि हमें जो टेलर सीरीज का एक्सपेंशन चाहिए वो इस रीजन में चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन में हमेशा जो क्वेश्चन होता है वो रीजन से बाउंडेड होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है that Z is a circle with center 0 and radius less than 1. So this is a circle with center 0 and radius less than 1. इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस जो कर्व है इस पर भी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ अंदर वाले रीजन को डिस्कस करेंगे। अंदर वाले रीजन के लिए हम इसे देखेंगे कि ये एनालिटिक है कि नहीं है। अब बात आती है हम ऐसा क्यों करेंगे, हम ऐसा क्यों देखें, उसका रीज़न भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये ऐसे क्यों दिया हुआ है। देखिए, दिस एफ जेड इज अनडिफाइंड इफ z स्क्वायर माइनस 3z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, z माइनस 1 एंड z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स एट z इज इक्वल टू 1 एंड 2 एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। इसका मतलब हमें इस जो 1 है इस पे तो हमारा फंक्शन एनालिटिक ही नहीं है, यानी अगर हम 1 पे टेलर्स लगा देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, वो लग ही नहीं सकता है, क्योंकि एफ जेड 1 पे एनालिटिक है ही नहीं। इसलिए अब पॉइंट आता है कि हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें कोई पॉइंट्स नहीं दिए हैं टेलर्स थ्योरम किसके अबाउट निकालें। ठीक है ना, क्यों, मैं क्या समझा रही हूँ अभी, मैं ये समझा रही हूँ कि इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से क्यों नहीं लगा सकते, फॉर्मूला बेस्ड क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला दिया है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए के अबाउट दिया है। ठीक है ना, जो फॉर्मूला दिया है वो किसी पॉइंट ए के अबाउट दिया है। हमें क्या दिया है, हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं। जब हम तो हमारे पास क्या दिक्कत है कि ये हमें 1 से कम वाला लेना है, तो हमें अलग अलग रीजन के लिए लेना है। वहाँ हमें यहाँ पॉइंट दिया ही नहीं गया है कि हम किसके अबाउट निकालें, हमें तो सिर्फ रीजन दिया हुआ है कि इसके अंदर लग सकती है, आप लगाइए। तो उसके लिए हमारे पास केवल ऑप्शन बचता है इसको यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व करना। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, केवल और केवल एक तरीके से, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि हमें ए नहीं दिया हुआ है जिसके अबाउट हमें टेलर्स थ्योरम को एक्सपेंड करना है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि ये एफ जेड एनालिटिक नहीं है तो हमें इस रीजन के अंदर अंदर का पोर्शन लेना है। ओके, नाउ स्टेप नंबर 3 आई विल पार्शियली ब्रेक इट। तो एफ जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन z माइनस 2 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। ठीक है, अब जब हमें ये मिल गया तो हम क्या करेंगे, z माइनस 2 टू दी पावर माइनस 1। अभी हम इसको यूं ही रखते हैं, मैं आपको बताती हूँ, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, चलिए, माइनस z माइनस 1 टू दी पावर माइनस 1। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम नॉर्मल फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, जबकि मैं इसे एक्सपेंड करूंगी यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, और इसे भी एक्सपेंड करूंगी यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। नाउ व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम? इफ यू वांट, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज सो दैट यू कैन आफ्टरवर्ड्स राइट इट। नाउ व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम? मैंने अभी अभी आपको लिखकर बताया था 1 माइनस या 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज 1 माइनस एन एक्स एंड दिस बिकम्स प्लस माइनस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज, आई एम टेकिंग हियर प्लस, सो इट विल बिकम प्लस, सो माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास होती है बाइनोमियल
थ्योरम। लेकिन याद रखो ये थ्योरम तभी एप्लीकेबल है, इज एप्लीकेबल only if x is less than 1. Okay, this is applicable only if mod x is less than 1. यानी जो x की वैल्यू है वो 1 से कम हो, तभी हम 1 माइनस एक्स की पावर n को इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर इस x की वैल्यू बड़ी हो गई तो हम ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर मैं ये अप्लाई कर रही हूँ तो z बड़ा है कि 2 बड़ा है, क्योंकि मुझे इसे 1 माइनस में बदलना है। किस में बदलना है? 1 माइनस। ठीक है, अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं z को कॉमन लूँ या 2 को कॉमन लूँ। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है मॉड z इज लेस देन 1। मॉड z लेस देन 1 है, इसका मतलब मॉड z अपॉन 1 इज ऑल्सो लेस देन 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मॉड z से अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। अगर मैं किसी नंबर को, सेम नंबर को 1 से डिवाइड करती हूँ तो वो सेम रहता है, और 2 से डिवाइड करती हूँ तो वो उसका हाफ हो जाता है, तो वो और छोटी नंबर होता है। तो अब देखो यहाँ पर z जो है वो 1 से ऑलरेडी छोटा है। ठीक है, और यहाँ पर मॉड z बाई 2 1 से छोटा है। इसलिए आप देखिए ध्यान से, मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसे लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ से देखिए, मैं कोशिश करूंगी यहाँ से 2 कॉमन कर लूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 2z बाई 2 माइनस 1, क्योंकि z बाई 2 छोटा है 1 से, और मुझे इसे 1 माइनस एक्स के फॉर्म में बदलना है, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, और z तो ऑलरेडी छोटा है तो मैं इसे लिख सकती हूँ माइनस को मैंने कॉमन कर लिया, प्लस 1 माइनस z। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, मुझे क्या करना है? 1 माइनस एक्स के फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैं 1 को पहले लिखूंगी और z बाई 2 को बाद में। तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस z बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस z। देखिए अब मैंने कैसे बदल लिया, ये बाइनोमियल के एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो गया है। देखिए अब यहाँ हम आराम से बाइनोमियल लगा सकते हैं, क्योंकि z बाई 2 जो है वो 1 से छोटा है, और ये जो z है वो भी 1 से छोटा है। और दूसरा, ये दोनों इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर गए। तो अब हमारा जब बाइनोमियल लगेगा तो हमें क्या मिलेगा? देखिए हमें मिलेगा माइनस हाफ 1 प्लस z बाई 2 प्लस z स्क्वायर बाई 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 प्लस z स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। I can simplify it and write minus half, okay, and I will get plus 1, ये एक साथ आ जाएंगे और मुझे मिलेगा प्लस माइनस z बाई 4 प्लस z प्लस माइनस z स्क्वायर बाई 8 प्लस z स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो अभी जो हमने इसे सॉल्व किया है, ये सॉल्व किया है मॉड z इज इक्वल टू लेस देन 1 के लिए। ठीक है, अब हम इसके दूसरे सेक्शन पे जाएंगे, पार्ट 2 पे। व्हाट डज पार्ट 2 सेज? पार्ट 2 क्या कहता है? चलिए हम फिर से आ जाते हैं। अब हमारा जो पार्ट 2 है वो क्या कहता है? बी कहता है मॉड z इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये क्या है? अब हमारे पास fz क्या है? fz तो हमारे पास वही है जो पहले था, 1 अपॉन z माइनस 2 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। इन दोनों को मुझे फिर से बाइनोमियल में बदलना है, इसका मतलब इस फॉर्म में बदलना है। ठीक है,
अब पॉइंट आता है कि इसको इस फॉर्म में बदलने के लिए इन दोनों में से किसी एक को बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, या तो 2 को कॉमन लेना पड़ेगा या z को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 2 को कॉमन लेती हूँ तो मुझे ये एक्चुअली यहाँ पे डाउट होता है सारे स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट को डाउट होता है कि हम किसे कॉमन लें, वो समझ ही नहीं पाते हम किसे कॉमन लें। बार बार इस चीज़ को आपको समझाऊंगी। देखिए ये हमारा है, या तो इसे कॉमन लेना पड़ेगा या इसे, क्योंकि हमें किसी एक को 1 बनाना है, ठीक है, पहली बात। अब हमें रीजन क्या दिया है, हमें रीजन दिया है ये वाला। अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा mod z बाई 2 इज ग्रेटर देन 1। मुझे ये मिल गया। इसका मतलब अगर मैं 2 को कॉमन लेती हूं तो मुझे मिलेगा -1 प्लस z बाई 2, और ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि z बाई 2 1 से बड़ा हो जाएगा। जैसे ही ये 1 से बड़ा होगा बाइनोमियल नहीं लगेगी, तो मुझे क्या करना होगा, इसे पलट देना होगा, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, चूंकि mod z बाई 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, एंड अगर मैं z को डिवाइड कर दूं 2 बाई mod z कर दूं तो वो लेस देन 1 होगा। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें इसे 2 बाई z बनाना है, z बाई 2 नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब z को कॉमन ले लेंगे, सो इट विल बिकम 1 अपॉन z 1 माइनस 2 बाई z एंड माइनस, अब ये जो है हमारा, अगर 2 बाई जेड जो है, 2 बाई जेड जो है वो हमारा लेस देन 1 है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो 1 बाई जेड होगा। ऑब्वियसली 2 बाई जेड लेस देन 1 है, तो 1 बाई जेड तो 1 से कम होगा ही होगा। और ये नहीं कहा गया है कि ये जो z है वो 1 से बड़ा है, सिर्फ ये कहा गया है ये 2 से बड़ा है। 2 से कहा गया है तो ऑटोमेटिकली ये 1 से बड़ा हो गया, ये z 1 से बड़ा है। यहाँ पर भी हमारी बाइनोमियल नहीं लग सकती है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर भी z कॉमन लेना पड़ेगा और ये बन जाएगा 1 बाई z, क्योंकि अगर 2 बाई z 1 से छोटा है तो 1 बाई z अपने आप 1 से छोटा हो गया, ठीक है। हमें ये मिल गया 1 अपॉन z 1 माइनस 2 बाई z टू दी पावर -1 माइनस 1 अपॉन z 1 minus 1 by z to the power -1. Now I will again apply here binomial expansion. Okay, so let us see what will come. Now let us see what I'll get. I'll get 1 by z, and this is 1 plus 2 by z plus 2 by z whole square plus up to so on minus 1 by z 1 plus 1 by z plus 1 by z square plus up to so on, and I'll get what I'll get, see, z to the power -1, okay, and plus, or if I write 1 by z, that is also okay, 1 by z 2 by z square 4 by z cube plus up to so on minus 1 upon z minus 1 upon z square and minus 1 upon z cube minus up to so on. So now this is the answer. अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 by z कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1 upon z square plus 3 by z cube and up to so on. क्लियर। अब हम जाते हैं तीसरे केस की तरफ। तीसरा केस क्या कहता है, तीसरा केस जो कहता है हमारे पास वो है ये, तीसरा केस हमारा कहता है दैट mod z इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। इसका मतलब mod z जो है वो 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक है। अब इन दोनों में मुझे किसी एक को कॉमन लेना है, या तो 2 को लेना है या z को लेना। अब किसे कॉमन लेंगे आप कहोगे क्यों कॉमन ले रहे हो, अरे भाई इसमें बदलना है, हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन में बदलना है, इसलिए कॉमन लेना। तो हम क्या करेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से हमें बड़ा मिला। अब देखो, अगर मैं यहाँ कर दूं 1 बाई mod z,
तो वो लेस देन 1 हो जाएगा। देखो दोनों तरफ z से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो mod z/2 विल बी लेस देन 1। तो यानी जिस केस में 2 है, जहाँ पर 2 है जिस फ्रैक्शन में, वहाँ से तो मुझे 2 बाहर निकालना है, तो 1/2 इंटू z/2 माइनस 1 एंड माइनस, यहाँ से मुझे क्या निकालना होगा, z कॉमन निकालना होगा। सो 1/z 1 माइनस 1/z। ओके अब देखिए ये हमें बनाना है 1 माइनस एक्स में, तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 माइनस मैंने कॉमन कर दिया 1 माइनस z/2 माइनस 1/z 1 माइनस 1/z, और हमें क्या मिलेगा, माइनस 1/2 1 माइनस z/2 टू दी पावर माइनस 1 माइनस 1/z 1 माइनस 1/z टू दी पावर माइनस 1। दिस इज माइनस 1/2 1 प्लस z/2 plus z square by 4 plus up to so on minus 1/z 1 plus 1/z plus 1/z square plus up to so on. Now simplify this. ये तो 2 है और ये z है, and we got the answer. So this is all about Taylor's theorem. Okay. This was all about Taylor's theorem. Now I hope you very well understood the Taylor's theorem. I am giving you a question to find the Taylor series. Whoever will answer first and comment it in my comment box, I will take his name in the next lecture. Okay, so just see the question. So this is the question. Do it fast and comment it in my comment box. Okay, and for the last videos, whoever answer is first is Muhammad Arman. Muhammad Arman has answered first, but actually Muhammad Arman has not commented in comment box. He has WhatsApped me. So please, I request you to all comment in comment box if you get the answer. Please go as soon as possible. Bye bye.